بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آغاز میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کراچی بار کے سالانہ انتخابات کے لیے سٹی کورٹ میں پولنگ کا عمل جاری ہے۔ صدارتی نشست پر ایڈوکیٹ عامر سلیم سمیت 3 امیدوار مد مقابل ہیں۔ 8000 وکلا اپنا حق رائے دہی کا استعمال کریں گے۔ ووٹنگ کا عمل شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ سٹی کورٹ کے مختلف بلاکس میں 24 پولنگ بوتھ بنائے گئے ہیں۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ کراچی بار کے سالانہ انتخابات کے لیے سٹی کورٹ میں پولنگ کا عمل جاری ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات لیتے ہیں ہمارے نمائندے ممتاز جمالی سے۔ جی ممتاز، آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں جی، اس وقت میں موجود ہوں سٹی کورٹ کراچی میں۔ کراچی بار کے انتخابات میں پولنگ کا عمل اس وقت بھی جاری ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں وکلا اس وقت عدالتوں میں آ رکھے ہیں اور مختلف پولنگ بوتھ میں جہاں پر ان کا ووٹ رجسٹر ہے وہاں ووٹ کاسٹ کر رکھے ہیں۔ یہ بالکل لائن بنی ہے ڈسٹرکٹ ویسٹ میں، جہاں پر وکلا آتے ہیں اور یہاں سے گزرتے ہوئے مختلف پولنگس میں وہ جاتے ہیں اور یہ ان امیدواروں کے حمایتی ہیں جو کہ درخواست کرتے ہیں مختلف وکلا سے کہ ان کے کینڈیڈیٹ کو جو ہے ووٹ کریں۔ پریزیڈنٹ علی اصغر بڑھو صاحب کے بھی حمایتی ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ سر کیا امیدیں وابستہ ہیں اور کیا لگتا ہے کہ سر الحمدللہ ووٹر کا ریٹرن اچھا آ رہا ہے، بہت پیارا آ رہا ہے اور ابھی ووٹر نکلا ہے گھر سے اپنے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے اور ہمارا کینڈیڈیٹ علی اصغر بڑھو جو پریزیڈنٹ کا کینڈیڈیٹ لڑ رہا ہے اس کا اپوننٹ ہے عامر سلیم اور بڑا کانٹے دار مقابلہ ہے۔ علی اصغر کا سلوگن یہی ہے کہ ینگ ووٹر پہ کام کیا جائے، ینگ وکیل پہ کام کیا جائے اور اس معاشرے میں ایک اچھا وکیل پیدا کیا جائے جو کہ آئین اور قانون کی پاسداری کرے اور آئین اور قانون کا تحفظ کرے اور اس معاشرے میں اپنا کردار ادا کرے۔ تو بڑا اچھا ووٹرز کا رسپانس آ رہا ہے، ینگسٹر ووٹر بڑا لائک کر رہے ہیں علی اصغر بڑھو صاحب کو اور بڑا اچھا لگ رہا ہے اس کمپین میں کہ ایک اچھے شخص کے لیے ہم ووٹ مانگ رہے ہیں۔ بالکل ان کا کہنا ہے کہ ٹرن آؤٹ اس وقت بڑا اچھا آ رہا ہے، تمام وکلا بھی جو ہیں آ رہے ہیں، لیکن ابھی وقت ہے، اب بہت وکلا کو اپنا ووٹ جو ہے کاسٹ کرنا ہے۔ وقار عالم عباسی کے حمایتی جو ہیں یہاں پر موجود ہیں، یہ صبح سے یہاں پر کھڑے تھے۔ سر کیا دیکھ رہے ہیں، ٹرن آؤٹ کتنا ہے؟ سر ٹرن آؤٹ ابھی تو تقریباً لوگ ووٹر آ رہے ہیں لیکن تھوڑے کم آ رہے ہیں، لیکن لنچ کے بعد جو ہے کافی تعداد میں لوگ آئیں گے اور یہاں پہ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے انشاءاللہ۔ یہ وکلا جو ہے دوستانہ انتخابات عامر سلیم کینڈیڈیٹ ہے پریزیڈنٹ کے لیے۔ سر کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے، کیا لگتا ہے؟ سر یہ سید عامر سلیم اور اصغر بڑھو کے دونوں کا مقابلہ ہے، لیکن ہم انشاءاللہ ہے جو عامر سلیم جیتے گا۔ بالکل یہ شام 5 بجے تک جو ہے انتخابات کا سلسلہ جاری رہتا ہے، ووٹنگ کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ لنچ کے بعد وکلا کی بڑی تعداد یہاں آئے گی کیونکہ بہت سے مختلف علاقوں میں کراچی ویسے بڑا شہر ہے تو یہاں آئیں گے اور اپنے حق کے رائے دہی کا استعمال کریں گے۔ کل 8000 ووٹر ہیں جو آج اپنے حق کے رائے دہی کا استعمال کریں گے اور 5 بجے کے بعد ووٹوں کی گنتی ہوگی، پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے انتخابات میں کون سی نشست پر کون۔ ملیر بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات میں ووٹنگ کا عمل جاری ہے۔ وکلا کی بڑی تعداد الیکشن میں حصہ لے رہی ہے۔ پولنگ کا عمل شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ جی بالکل، ملیر بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات میں ووٹنگ کا عمل صبح 9 بجے سے جاری ہے جو کہ بلا تعطل 5 بجے تک جاری رہے گا اور 5 بجے جو ہے وہ نتائج سامنے آ جائیں گے۔ تمام امیدوار جو ہیں وہ پر امید دکھائی دیتے ہیں جیت کے لیے اور وکلا کی جانب سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ہمارا جو ہے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں، جو نوجوان وکلا ہیں ان کا یہی مطالبہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے۔ آج الیکشن ہو رہے ہیں، ملیر بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات ہیں جس میں ووٹنگ کا عمل جاری ہے۔ وکلا کی بڑی تعداد الیکشن میں حصہ لے رہی ہے۔ تازہ ترین صورتحال آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ آج جو سندھ بار کے الیکشن ہو رہے ہیں اس میں کافی گہمی جو ہے وہ پائی جا رہی ہے۔ جی بالکل، ملیر بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات میں ووٹنگ کا عمل جاری ہے۔ وکلا کی بڑی تعداد الیکشن میں حصہ لے رہی ہے۔ پولنگ کا عمل شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ اپنے ناظرین کو اہم خبر سے جو ہے وہ آگاہ کر رہے ہیں کہ ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات میں ووٹنگ کا عمل جاری ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندہ بلال احمد سے۔ جی بلال، کیا تفصیلات ہیں؟ جی ملیر بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات میں ووٹنگ کا عمل جاری ہے۔ صبح 9 بجے یہ عمل شروع ہوا اور شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گا۔ یہاں پر 1144 ووٹرز ہیں جو کہ اپنا حق رائے دہی انجام دیں گے۔ اس وقت وکلا کی بڑی تعداد موجود ہے
मलिर बार एसोसिएशन के अंदर। और यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं उनके ना सिर्फ वो हैं बल्कि उनके जो हामी वकला हैं उनकी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। 5 बजे का वक्त है और ये तो की जा रही है कि तकरीबन जो टर्न आउट है वो 80 से 90% जाएगा। इस मरतबा 60% तकरीबन वोट 1144 से पड़ चुके हैं, क्योंकि उसकी वजह ये बताई जा रही है कि जितने उम्मीदवार हैं उसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही जोशो खरोश दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सदर, सेक्रेटरी और जो दीगर ओहदे हैं उनमें सख्त 1-to-1 कई नशिस्तों के ऊपर मुकाबला है। और आज चुके कराची बार एसोसिएशन के भी सालाना इंतखाबात हैं, तो इस सिलसिले में कराची बार एसोसिएशन के अंदर अलग से मुहिम भी है, वहाँ पर वोटिंग का अमल भी जारी है। लेकिन चूंकि ये कराची का एक जिला मलीर अलग से है तो इसकी बार एसोसिएशन भी अलग से कायम की गई है और यहाँ पर भी जो वोटिंग का अमल है। बिलाल अहमद हमें अपडेट कर रहे हैं। आज मलीर बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात जो हैं वो जारी हैं, वोटिंग का अमल जारी है, वकला की बड़ी तादाद इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। और चेयरमैन इलेक्शन कमीशन आपको बताएं कि 33 उम्मीदवार हैं जो मुख्तलिफ नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेंगे। सदारती उम्मीदवारों की नशिस्त पर भी बराजमान है जो आज मद्दे मुकाबल हैं। देखना ये होगा कि 5 बजे जो है नताइज सामने आएंगे तो पता चलेगा कौन किसकी जीत हुई है। हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद भी हमें अपडेट कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा बिलाल, ये भी बताइएगा नौजवान वकला की क्या तवक्कात हैं उम्मीदवारान से? जी देखिए, जिस तरीके से सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अभी चंद रोज़ पहले इंतखाबात हुए हैं तो वहाँ पर भी वकला जो नौजवान हैं वो बड़ी तादाद के अंदर वहाँ मौजूद थे और आबिर वड़ाइच वहाँ से कामयाब हुए हैं नौजवान वकला। इसी तरीके से अगर मलीर की बात की जाए, मलीर बार एसोसिएशन की बात की जाए तो यहाँ पर भी वकला की बड़ी तादाद मौजूद है और नौजवानों वकला जो है यहाँ पर ना सिर्फ उम्मीदवार की सूरत के अंदर मौजूद हैं बल्कि वोटर्स भी मौजूद हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ वकला मौजूद हैं जिनमें नौजवान वकला भी मौजूद हैं, खातून भी मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि आपके मलीर बार एसोसिएशन में क्या मसाइल हैं, किन मसाइल का सामना करना पड़ता है खवातीन को, वो थोड़ा सा बताइएगा। और जो कैंडिडेट है उसका उनके मंशूर क्या था खवातीन के हवाले से? आई एम एडवोकेट अस्मा मोहसिन और हर साल की तरह मलीर बार एसोसिएशन में ईयर 2022 और 23 के इलेक्शंस हो रहे हैं एंड ऑल ऑफ अस आर वेरी मच इंथुजियास्टिक फॉर आवर ओन कैंडिडेट्स। और जो सारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सब इस तरह का मैनिफेस्टो लेकर आए हैं कि इफ़ दे आर गोइंग टू बी इलेक्टेड इंशाल्लाह दे विल रिजॉल्व द प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ द एडवोकेट्स दे आर फेसिंग राइट नाउ, जिसमें बार और बेंच का कम्युनिकेशन गैप है, जिसमें वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें स्पेशली जो फीमेल लॉयर्स हैं उनके लिए प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट का एंड एज वेल एज जो वर्क की डिस्ट्रीब्यूशन है, उनके पास काम की अवेलेबिलिटी उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एंड ट्रेनिंग सेशंस है। तो हमारे तकरीबन हर एक कैंडिडेट ने इस चीज़ को अपने मैनिफेस्टो का एक हिस्सा बनाया है एंड होपफुली इंशाल्लाह ताला अच्छे लोग आएंगे और अभी बार का माहौल जो है उससे ज़्यादा हमें अच्छा देखने को मिलेगा। 4 मरतबा आप सदर रहे हैं मलीर बार एसोसिएशन के, क्या मंशूर है इस मरतबा नौजवान वकला के लिए या मजमूई तौर के ऊपर क्या इश्यूज हैं मलीर बार के वकला को दरपेश? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ वकला को जो मसाइल दरपेश है वो सबसे बड़ा जो मसला है वो है यहाँ पे टाउटिज़म का। जो टाउटिज़म यहाँ पे ख़त्म हो जाए तो वकला को रोज़ी रोज़गार मिलेगा। जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, सबके मंशूर का एक अहम तरीन हिस्सा यही है कि यहाँ से हम टाउटिज़म ख़त्म करेंगे, यहाँ से हम इंसाफ की रवानी करवाएंगे और यहाँ पे जो मसले मसाइल हैं वकला के वो इनको हल करेंगे। और इसके लिए तमाम कैंडिडेट्स पुरअज़म हैं और बड़े ज़बरदस्त किस्म का इलेक्शन हो रहा है। तकरीबन अभी तक तकरीबन 70% वोट कास्ट हो चुके हैं और मेरे ख्याल में तकरीबन 95% वोट कास्ट होंगे। अच्छा जी, अब आप थोड़ा सा बताइएगा कि सिंध हाई कोर्ट बार के इलेक्शन हुए और फिर आज कराची बार के, वहाँ पर भी नौजवान वकला प्रोटेस्ट कर रहे थे कि कैंडिडेट्स खाना चाय पानी होता है, मंशूर अच्छा नहीं होता। तो यहाँ मलीर बार की सिचुएशन क्या है? जी, मैं सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का भी मेंबर हूँ और यहाँ पे जो है मैं जो कैंपेन कर रहा हूँ वो है फ़कीर मोहम्मद तुनियो साहब जो लाइब्रेरियन के कैंडिडेट हैं और गुल मोहम्मद फारूकी साहब का ये ग्रुप है, उससे वो कंटेस्ट कर रहे हैं। उनके मंशूर में यह है कि जी हम डिजिटल लाइब्रेरी यहाँ पे बनाएंगे, कंप्यूटराइज होंगी तमाम किताबें जो है और वो जो है कहीं ना कहीं से डोनेशन भी लेके आएंगे और इंशाल्लाह ताला जो है वो लाइब्रेरी को बहुत बेहतर करेंगे।
तो हमारी भी कोशिशें हैं। मैं भी सिंध हाई कोर्ट से आया हूँ, वहाँ से जो है वहाँ भी इस दफ़ा जो है वो आमिर वड़ाई साहब जो है वो जनरल सेक्रेटरी पे जो है वो कामयाब हुए हैं, वो भी यंग हैं। और वो जो है वहाँ पे मंगरियो साहब है, वो भी जो है लाइब्रेरी के लिए उनकी भी बड़ी खिदमत है। तो यहाँ पे भी लाइब्रेरी के लिए ख़ास तवज्जो देंगे जो है इंशाअल्लाह ताला जो है हमारे फ़कीर मोहम्मद कुनियो साहब, वो गुल मोहम्मद फारूकी साहब की सरबराही में मुजफ्फर हुसैन सोलंकी साहब, उनका एक बड़ा ग्रुप है जो कि इंशाअल्लाह ताला जो है लोगों से डोनेशन भी ले सकते हैं। वो साहब का जज भी हैं और वो लाइब्रेरी के लिए बहुत बेहतर कुतब भी इंशाअल्लाह ताला जो है वो लाएंगे और इंशाअल्लाह ताला जो है बहुत बेहतर हो जाएगा, क्योंकि वकला का काम है किताबों के साथ जो है। तो ज़्यादातर ये लाइब्रेरी की बात हो रही है, हाई कोर्ट की बात करें या कराची बार की बात करें तो वहाँ प्लॉट्स, पार्किंग, इस तरह के इश्यूज हैं। तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ ये वाले इश्यूज नहीं हैं या डिमांड नहीं है वकला की? आप देखिए, ये तो कॉमन इश्यूज हैं, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो रूल ऑफ लॉ की बात है। जो सबसे ज़्यादा हमारे पास इग्नोरेंस इस चीज़ को दी जाती है वो रूल ऑफ लॉ है और इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ है। देखिए, हमारे माशरे का बुनियादी अलमिया ये है कि आज तक एक जो फ्लाई माशरा है वो हम कायम नहीं कर सके। फिर हमारे जो रूल ऑफ बिजनेस हैं, जो इन्फोर्स लॉ ऑफ लैंड है, वो ब्रिटिश से ओरिएंटेड है और कुछ इस्लामिक उसमें मर्ज हैं। तो एक ऐसी चीज़ है जो हमारे माशरे को प्रॉपरली वो रिप्रेजेंट नहीं करती। हमारे जो कल्चर है, हमारी जो इलाकाई रिवायात हैं, उनको वो जो फोकस नहीं करती, जिसकी वजह से हमें एक इशू आता है। दूसरी बात ये है कि अगर एक एज ए नेशन फुल तरीके से इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ नहीं होगी तो हमारे पास माशरती मसाइल जन्म लेंगे। मलीर बार की बात करें, मलीर बार के उसी पे आ रहा हूँ। मलीर बार भी देखिए ये ठीक है बिलाल अहमद, हम मजीद भी अपडेट्स आपसे हासिल करते रहेंगे लम्हा बलम्हा, लेकिन अभी के लिए बहुत शुक्रिया। मलीर बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात जारी हैं। सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, लाइब्रेरियन और मैनेजिंग कमेटी की नशिस्त पर 33 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल हैं। हमारे नुमाइंदे शोएब मुख्तार इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेते हैं। जी शोएब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मलीर बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात जो है वो जारी हैं। आज सुबह जो है 9 बजे से पोलिंग का आगाज़ किया गया है, जो 5 बजे तक जारी रहेगा। सदर, जनरल सेक्रेटरी, नायब सदर, लाइब्रेरियन और जॉइंट सेक्रेटरी मैनेजिंग कमेटी की नशिस्तों पर 33 उम्मीदवार जो है मद्दे मुकाबले हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ उम्मीदवारों की जानिब से जो है अपने अपने कैंप्स लगाए गए हैं। काफ़ी डिस्ट्रिक्ट मलीर कोर्ट में हमें गहमी दिखाई देती है। वकला बरादरी एक बड़ी तादाद में मौजूद है। ख़वातीन वकला भी यहाँ पर हमें बड़ी तादाद में जो है मुख्तलिफ कैंपों में दिखाई देती हैं। तो हम इनसे बात करेंगे। हमारे साथ कुछ ख़वातीन वकला मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि क्या ये मौजूदा इलेक्शन का इनेकाद जिस तरह किया गया है, जिस तरीके से इलेक्शन का इनेकाद हुआ है, क्या वो इंतज़ामात से मुतमईन है? जी, ये 2023 और 24 की इलेक्शंस आज हमारी 17 को मलीर बार में हो रही हैं। वो एक जमहूरी अमल है। जिस तरह हमारे मुल्क की मुख्तलिफ इलेक्शंस होती हैं, पूरी दुनिया में एक जमहूरी अमल है, इसी तरह बार के इलेक्शंस में एक जमहूरी अमल है। बहुत अच्छा अमल है। जो इन इलेक्शंस में हम मुख्तलिफ हमारे कैंडिडेट्स कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन, जिनमें हम अपनी मर्ज़ी के वकला को, जिनको हम बेहतर समझते हैं कि ये मुख्तलिफ पोस्ट पर आकर हम वकला की आवाज़ बुलंद करेंगे। जो मोस्ट डिज़र्विंग कैंडिडेट्स होते हैं हम उनको वोट्स देते हैं, उनको हम लाते हैं सीट्स पर, क्योंकि हर जगह पर मुख्तलिफ किस्म के मसाइल होते हैं। इसी तरह हमारी जो वकला हैं, फ़ीमेल वकला हैं या मेल वकला भी हैं, उनके मुख्तलिफ इश्यूज़ होते हैं जिनकी ये जो कंटेस्ट करके आते हैं वो उनकी नुमाइंदगी करते हैं, उनके इश्यूज़ को रिजॉल्व करते हैं। मलीर पूरे सिंध में, कराची में एक अहम ज़िला है जिसकी इलेक्शंस की भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। उसी तरह ये जो पॉलिटिकल अमल होता है वो आगे की जो पॉलिटिकल, क्योंकि वकील एक क्रीम ऑफ सोसाइटी होता है और वो ही जो सोशल इश्यूज़ होते हैं उनको भी एड्रेस कर सकता है लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए। इसी तरह ये सारी जो प्रोसेस है हमारा, वो बहुत अच्छा प्रोसेस है जिसमें हम बहुत एक्साइटेड भी होते हैं और बहुत मेहनत भी करते हैं। यंग कैंडिडेट हैं, पॉलिटिकली हवाले से वो अच्छी नॉलेज रखते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो इंशाल्लाह विन करेंगे और उसके बाद यंग लॉयर्स और फीमेल लॉयर्स के लिए एक जो है वो बेहतर पॉलिसीज़ लाएंगे। थैंक यू।
जी बिल्कुल, ख़वातीन और मर्द वकला की यहाँ पर बड़ी तादाद मौजूद है जो अपने उम्मीदवारों के हक़ में नारेबाजी कर रही है। अगर बात की जाए इस बार मलीर बार एसोसिएशन के वोटर्स की, तो उनकी तादाद जो है वो 1144 जो है वो बताई जाती है। यहाँ पर मलीर बार एसोसिएशन में जो है वोट डालने के लिए वोटर्स की आमद का सिलसिला जो है वो जारी। अगर बात की जाए यहाँ पर सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम हैं। किसी भी बहुत शुक्रिया शुएब। आगे बढ़ो और आपको बताएं, ऑटोमोटिव ट्रेडर्स एंड इंपोर्टर एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में वोट डालने का अमल जारी है, तो वहीं इंतखाबी गहमा गहमी भी उरूज पर पहुंच चुकी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं। जी बसीम। जी बिल्कुल, ऑटोमोटिव ट्रेडर्स एंड इंपोर्टर्स एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात जारी है और सुबह से ही हम देख रहे हैं कि इंतखाबी गहमा गहमी जो है वो उरूज पर पहुंच चुकी है। और अच्छी बात हमने ये देखी यहाँ पर इस इलेक्शन में, क्योंकि दो पैनल है यहाँ पे, एक आवाज़ पैनल है और एक इनकलाब पैनल है। दोनों पैनल्स की जानिब से नारेबाजी तो की गई, लेकिन दोनों पैनल्स की जानिब से जो उनके कारकुनान थे, उनके रहनुमा थे, उनके लोग थे, उनको ये कहा गया कि नारेबाजी ऐसी की जाए कि दूसरे की दिल आज़ारी ना हो। तो एक बड़ी खूबसूरत चीज़ हमने देखी कि यहाँ पे एक दूसरे का ख्याल भी रखा गया और वोटर्स आ रहे हैं, अपना हक के राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं और स्मूथ तरीके से जो है वो वोटिंग का अमल हम सुबह से ही देख रहे हैं। कोई भी नाखुशगवार वाक़या यहाँ पर पेश नहीं आया और इसके साथ साथ अमन व अमान की सूरत हाल को जो है यहाँ पर यकीनी बनाने के लिए पुलिस भी मौजूद है, पुलिस की नफरी भी मौजूद है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इनकलाब पैनल के चेयरमैन मोहम्मद कामरान साहब, वक्त का में मुकाबला सख्त है, आप क्या कहेंगे? 2 घंटे रह गए, अपनी जीत के लिए कितने पुरअज़म है और जीत अगर आप मुकद्दर बनती है तो उस सूरत में क्या आपका इनकलाबी इंतजाम होगा जो मालिकान है शोरूम के उनके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए भाईजान, एक जीतेगा एक हारेगा, ठीक है ना, दोनों में से है, वो सब कार डीलर्स ही, जो भी आएगा वो कार डीलर्स की बका के लिए काम करेगा। तो इनकलाब पैनल लास्ट टाइम भी जीता था 200 वोट से, तो इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा भी उम्मीद है 200 वोट की लीड आज भी इंशाल्लाह ताला बरकरार रहेगी। जी तो ये है मोहम्मद कामिन का कहना है कि इनकलाब पैनल जो है वो जीतेगा और उनकी जो है जीत की जो रविश है वो बरकरार रहेगी। अब तक जो हमें बताया गया है तकरीबन 150 वोट जो है वो कास्ट किए जा चुके हैं जो वोटर्स हैं उनकी जानिब से, और तकरीबन 5 बजे के करीब जो है वो जो वोट जो है वो कास्ट करने का अमल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बुजुर्ग वोटर भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि वोट कास्ट करके आ रहे हैं। इनसे कोशिश करते हैं कि बात हो सके। सर, आपने वोट कास्ट किया है, क्या कहेंगे? जो आपने वोट कास्ट किया तो क्या सोच के किया आपने? माहौल अच्छा हो जाए, जो प्रॉब्लम है जो क्राइम के वो ख़त्म हो जाए, अगर ये करना चाहें तो। इनका कहना है कि क्राइम ख़त्म हो जाए और जो शोरूम मालिकान हैं उनको जो मसाइल दरपेश हैं वो हल हो जाएं। इस यकीन के साथ इन्होंने अपना जो पसंदीदा पैनल है, यकीनन इनका जो पसंदीदा उम्मीदवार है उसको जो है इन्होंने वोट कास्ट किया है। उसके साथ साथ बसीम इफ्तिखार हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, महकमा तरक्की और मनसूबाबंदी बोर्ड में तकर्रुर और तबादले। महकमा तरक्की और मनसूबाबंदी के 20 ग्रेड के 5 अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए। इन तकर्रुर और तबादलों का महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहरियों से। जी आज़ाद। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा तरक्की और मनसूबाबंदी बोर्ड में 5 20 ग्रेड के अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए हैं, जिसका महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक डायरेक्टर प्लानिंग एंड वाटर रिसोर्सेज जावेद अख्तर का तबादला करके उनको सीनियर चीफ सोशल सेक्टर तैनात कर दिया गया है, जबकि सीनियर चीफ टेक्निकल विंग इश्तियाक अहमद का तबादला करके उनको सीनियर चीफ सोशल सेक्टर जो है तैनात कर दिया गया है, जबकि सीनियर चीफ टेक्निकल विंग सिकंदर शेख का तबादला करके उनको सीनियर चीफ ट्रांसपोर्ट बस ट्रांजिट तैनात कर दिया गया है। सीनियर चीफ टेक्निकल विंग गुलाम शेख का तबादला करके उनको सीनियर चीफ फिजिकल प्लानिंग तैनात कर दिया गया है, जबकि सीनियर चीफ साइंस और टेक्नोलॉजी फरजाना शानी का तबादला करके उनको सीनियर चीफ खेल सकाफत व सयाहत तैनात कर दिया गया है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जी ठीक है आज़ाद, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सिंध हुकूमत ने तफरीही मकाम को सरकारी गाड़ियों का कब्रिस्तान बना दिया है। इसी पर एक बार फिर बात करते हैं आज़ाद नोहरियों से। आज़ाद, इस हवाले से भी अपडेट करें। जी बिल्कुल, यहाँ पर अंधेर नगरी, चौपट राज, चराग तले अंधेरा,
यहाँ सूरत हाल ये है कि संघ सरकार की जनब से नई सरकारी गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है, लेकिन संघ सरकार की वो सरकारी गाड़ियाँ जो ज़ेर इस्तेमाल रही है, मुख्तलिफ गवर्नर्स, वज़रा आला, वज़रा, मुशीर, मामले ख़ास, सेक्रेटरीज, चीफ सेक्रेटरीज, उनके इस्तेमाल में रहने वाली गाड़ियों का यहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर कब्रिस्तान मौजूद है। ये कब्रिस्तान जो है क्लिफ्टन के इलाके में DMC साउथ के ग्राउंड में बाकायदगी से बनाया गया। यहाँ पर बड़ी तादाद में यानी 200 से ज़्यादा सरकारी गाड़ियाँ मौजूद हैं जो नाकारा बन चुकी हैं, जिसमें 7 मर्सिडीज़ गाड़ियाँ हैं जो सबका गवर्नर्स और वज़ीर आला के इस्तेमाल में रही है। इसके अलावा लैंड क्रूज़र, पेजारो, इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियाँ, मेरा कैमरामैन दिखाए इमरान, तो यहाँ पर मेरे उल्टे हाथ पर जो है गाड़ियाँ मौजूद हैं, जिसमें मेहरान है, अल्टो है, कल्टस है, GLI है, इसके अलावा मुख्तलिफ बोलान वैन्स हैं, इसके साथ साथ पोटवार जीप है, हाईएस्ट वैन है वो भी हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की जो गाड़ियाँ हैं कंपनीज़ की यहाँ पर मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुकी हैं, जिस गाड़ियों को जो संघ सरकार के जनब से इनकी जो है फ़रोख्त करने के हवाले से या नीलाम करने के हवाले से ताल जो फ़ैसला करना था, फ़ैसला करना होगा, उस हवाले से पार्लियामानी कमेटी ने फ़ैसला किया कि 2 से ढाई महीने के अंदर इसकी पॉलिसी बनाकर इन गाड़ियों को नीलाम किया जाएगा। वो तमाम तरह गाड़ियाँ नाकारा बन चुकी है। इन गाड़ियों में तमाम तरह जो कीमती पुर्जे, तमाम तरह जो कीमती औजार हैं वो भी गायब हैं, लेकिन ये गाड़ियाँ संघ सरकार की अदम तवज्जो के बायस 2019 के बाद नीलाम नहीं हो सकी हैं, जिसके बायस इन गाड़ियों का यहाँ पर DMC साउथ में कब्रिस्तान बनाया गया है। इस हवाले से सिंध हुकूमत ने फ़ैसला किया है, पार्लियामानी कमेटी बनाए इन गाड़ियों को नीलाम करना, लेकिन पार्लियामानी कमेटी मुतहरक होकर इन गाड़ियों की नीलामी के हवाले से किसी किस्म के अब आपको बताएं, शहर कायद से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर बीरबल ने अपनी बेटी डॉक्टर सपना कुमारी के साथ क्लास फेलो बनकर डिग्री हासिल करने का बेटी का ख्वाब पूरा कर दिया। मज़ीद बता रही हैं राबेल अशरफ। जी बिल्कुल, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं शहर कायद में एक ऐसी बाप बेटी की जोड़ी से जिन्होंने 7 तालीम हासिल करी, एक ही सेक्शन में उन्होंने पढ़ा। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बीरबल, इनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर, मुझे बताइएगा कि डॉक्टर भी हैं आप, अब उसके बाद आपने MBA का इंतखाब किया और साथ ही अपनी बेटी के साथ तालीम हासिल करी, इस बारे में मुझे थोड़ी सी तफसील दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझे रिगार्ड किया। ये एक अलग एक स्टोरी है, आप सही कह रहे हैं कि बेटी ने बाप के साथ एक ही क्लास में एक सेक्शन में क्लास फेलो होते हुए MBA हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट में एडमिशन लिया और 2021 में इम्तिहान पास किया। मेरी बेटी डॉक्टर सपना कुमारी, वो खुद भी एक डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, और जब MBA के एडमिशन हो रहे थे जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने मुझे कहा कि डैडी आप भी एडमिशन ले लें। तो मैं उस वक्त रिटायर होने वाला था। एक्चुअली मेरी पोस्टिंग सीनियर डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज KMC थी और मैं 2 साल के बाद रिटायर होने वाला था। मेरी बेटी ने कहा कि बाबा पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, आप पढ़ें, स्टडी करें तो अच्छी चीज़ है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, मैं भी कर रही हूँ और अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा कुछ ऐसी सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ के हैं, मुझे नहीं समझ में आता। तो मेरी बेटी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं बैठी हूँ, मुझे मैथ्स अच्छी आती है, मैं आपको पढ़ाऊँगी। इस तरह मेरी बेटी डॉक्टर सपना कुमारी मेरी क्लास फेलो रही, मुझे पढ़ाया, मेरी टीचर भी रही, और इस तरह हम दोनों ने एक साथ एडमिशन लिया। 2021 में हमने ग्रेजुएशन पास की। अब 18 दिसंबर को जो कन्वोकेशन हो रहा है जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में, उसमें हम दोनों बाप बेटी को एक साथ उसकी डिग्री अवार्ड होगी। जी बिल्कुल, मेरे साथ डॉक्टर सपना कुमारी भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। जी डॉक्टर, मुझे ये भी बताइएगा कि आपने मतलब कैसे सोचा, ज़ाहिर है माँ बाप जो है अपनी बच्चों की परवरिश, उनकी तालीम हासिल करने में इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपने जो है अपने वालिद साहब को इस तरह प्रमोट किया कि भाई तालीम हासिल करें, इल्म हासिल करने की ऑब्वियसली कोई उम्र नहीं होती, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जिस तरह से वालिदीन जो हैं अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं पढ़ाई में और बाकी फाइनेंशियल इमोशनल चीज़ों में, इस तरह से औलाद का भी फ़र्ज़ है कि वो भी अपने वालिदीन को सपोर्ट करें ज़िंदगी के हर मरहले में। अगर वो स्टूडेंट्स लाइफ में हैं तो काफ़ी चीज़ों में वो लैग करते हैं बच्चे, तो माँ बाप सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब उम्र का एक ऐसा हिस्सा आता है जब वो भी वीक पड़ जाते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने वालिदीन को सपोर्ट करें। जी बिल्कुल, मेरे साथ जो है डॉक्टर सपना कुमारी और इनके वालिद साहब डॉक्टर बीरबल मौजूद थे। उनका ये कहना है कि इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती और इसकी बेहतरीन मिसाल है हमारे साथ ये दोनों बाप बेटी की ये जोड़ी, जिनका ये कहना है कि 18 तारीख को हमारी जो है कॉन्वोकेशन है, जहाँ पर बच्चे जो है ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि वालिदैन अपने बच्चों की कॉन्वोकेशन अटेंड करते हैं, लेकिन अब इनके बच्चे जो आ रहे हैं वो मेहमान बनेंगे इनकी कॉन्वोकेशन के। जी अपने नाज़रीन को आगाह करें
करें कि कराची पुलिस के सरबराह एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल जावेद आलम ओधो ने कहा है, शहरियों से अपील की है कि बराए मेहरबानी डाकुओं से मज़ाहमत ना करें। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड है कि जब कोई मुसल्लह हो उसके साथ उलझना, उसके साथ करना, ये पूरी दुनिया का है कि उसके साथ नहीं करना, और इससे कीमती जानों का बचाव होता है। अगर आपने 10 जानें भी इस तरह बचा ली तो बड़ी बात है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो वेपन है आपके पास लाइसेंस्ड, किसी ने आपको नहीं रोका, उसके लिए परमिट होती है कैरी करने की, उसका करने की आप करें, लेकिन एक हैंडगन पिस्टल को अपने साथ रख के गाड़ी में आप अपने आप को महफूज नहीं समझ सकते। ये पूरी दुनिया का रूल ऑफ थंब है, क्योंकि अगला जो आता है वो तैयारी के साथ आता है, और आप जब भी उसकी तरफ बढ़ते हैं उससे पहले वो उसको इनिशिएटिव, उसका एडवांटेज होता है, वो इनिशिएट कर लेता है अपनी फायरिंग जो भी करना है। तो हम इसको डिस्करेज करते हैं। हम कहते हैं कि आप गार्ड, गनमैन या पीछे कोई भी बैठा हुआ हो आपके असले के, वो अच्छी बात है, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी है, लेकिन आप पिस्टल को रख के इस तरह जब कोई ऊपर आ। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने पुलिस चीफ का बयान शहरियों के जख्मों पर नमक पाशी के मुतरादिफ करार दे दिया। मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। हमारे पुलिस चीफ साहब जो पहले भी ये बयान डाल चुके थे कि कराची में तो वारदातें लोग तासुर ज़्यादा देते हैं और यहाँ सूरत हाल इतनी ख़राब नहीं है, और वो फिर मुल्क के दुनिया के दूसरे शहरों की मिसालें भी देते हैं। और कल भी उन्होंने हमारे ज़ख्मों पर नमक पाशी की है। जब हम NED यूनिवर्सिटी के नौजवान की लाश उठा रहे थे, उसकी तदफीन कर रहे थे, तो पुलिस चीफ का बयान आ रहा था कि शहरी मज़ाहमत न करें, और अगर डाकू उनसे कोई चीज़ मांगते हैं तो आराम से उनको दे दें। तो भाई फिर ये पुलिस की क्या ज़रूरत है? ये आपके जो इतने बड़े बड़े दफ्तर हैं, इतने बड़े थाने हैं, इतने SSP के ऑफिस हैं, IG DIG के ऑफिस हैं, खुद आपका अपना प्रोटोकॉल है, इन बड़े अफसरान के अपने लल्ले तलल्ले हैं, इनके घर तो महफूज होते हैं, वहाँ तो ये अपनी नफरी लगा के रखते हैं, लेकिन आप लोगों से कहते हैं कि मुज़ाहमत ना करें, और अपना माल जो है जिस तरह से डाकू मांगते हैं दे दें, और डाकुओं को कोई फिक्र नहीं है कि वो पकड़े जाएंगे, और अगर वो पकड़ भी लिए जाएंगे किसी दबाव के नतीजे में, तो मेरा एक सवाल बनता है पुलिस चीफ साहब से और IG सिंध से कि पिछले तवील 3-4 साल से वारदातों में इंतहाई बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। इस दौरान में उन्होंने कितने लोग गिरफ्तार किए और कितने लोगों का प्रोसिक्यूशन हुआ, यानी केस चलाया गया, कितने लोग छूट गए, जिनको गिरफ्तार कर रहे हैं वो तो पीछे से छूटते चले जा रहे हैं, बल्कि जेल में तो एक नई नेटवर्किंग हो जाती है, ऐसा माफियाई निज़ाम मौजूद है ये। और जाहिर सी बात है कि पुलिस के मिले बगैर, थाने की सतह पर मुजरिमों की सरपरस्ती के बगैर न डकैती का, न कत्लेआम का और न मुनशियात का। बढ़ती महंगाई के बायस ताजरों का सब्र जवाब दे गया है। सदर ऑल कराची ताजर अलायंस आसिफ गुलफाम ने सड़कों पर एहतजाज की धमकी दे दी है। मजीद बता रहे हैं काविश मेमन। जी काविश बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क की बिगड़ती हुई माशी सूरत हाल के बायस कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासर होने लगी है। कराची में ताजिर बिरादरी कारोबार ना होने पर परेशान दिखाई देती है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ऑल कराची ताजिर अलायंस के सदर आसिफ गुलफाम साहब। सर बताएं, कारोबारी सरगर्मियाँ किस तरह से मुतासर हैं, ताजिर बिरादरी क्या सोच रही है? देखिए, ताजिर बिरादरी पूरे कराची शहर की वो चाहती है कि इस शहर को अमान आए। जो पहले बिज़नेस था वो बिज़नेस दोबारा लौट के आए। 30% जो है कारोबार रह गया है इस शहर में। देखिए, मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये कराची का दिल है, और ऑल सिटी जो है कराची का हब है बिज़नेस का। इस बिज़नेस को नज़र लग चुकी है, लेकिन इन हुक्मरानों को अकल नहीं आ रही है। इन्होंने अपने इस प्यारे मुल्क को, इस प्यारे शहर कराची को इन्होंने सबको दांव पे लगा दिया कि आज पूरा दिन बाज़ार खोलते हैं लेकिन कारोबार नहीं है। लोग हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं, इंतज़ार करते हैं कस्टमर का, लेकिन हुक्मरान कहीं भी ताजिर बरादरी के साथ खड़ी नज़र नहीं आती है। कहीं तसल्ली बख्श जो है वो जवाब नहीं आता, कोई राब्ता ताजिरों से नहीं किया जाता। हम आवाज़ उठा के थक चुके हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो कराची की तमाम ताजिर बरादरी
آپ کو احتجاج کرتی روڈوں پہ نظر آئے گی. جی بالکل. آل کراچی تاجر الائنس کے صدر آصف گلفام کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اگر حکومت نے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات نہ کیے تو پھر ہم احتجاج پر مجبور ہوں گے. ان کا یہ کہنا تھا کہ اولڈ سٹی کو جو ہے وہ معاشی طور پر اور کاروباری لحاظ سے جو ہے وہ کراچی کا دل کہا جاتا ہے. پوری معیشت کو چلانے میں جو اولڈ سٹی ایریا کی مارکیٹیں ہیں وہ ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں. آصف گلفام کا یہ کہنا تھا کہ حکومت بہت شکریہ کاوش اس تفصیل کا. الہدا انٹرنیشنل اسکول کی DHA برانچ میں اسلامک ایگزیبیشن کا انعقاد کیا گیا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے بھی نمائش میں شرکت کی اور طلبہ کو سراہا. مزید بتا رہی ہیں ہیرا جبین. جی بالکل. میں اس وقت موجود ہوں الہدا انٹرنیشنل اسکول میں جہاں پر اسکول کی جانب سے اسلامک ایگزیبیشن 2020 کا انعقاد کیا گیا. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب. ان سے جاننے کی سر بتائیے گا کہ کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا آج اور اس طرح کی ایگزیبیشنس ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں الہدا انٹرنیشنل اسکول اور انسٹیٹیوٹ کی مینجمنٹ کو, ان کی ٹیچرز کو اور بچوں کو. ان کے اسٹوڈنٹس نے بہت اچھے پروجیکٹس بنائے اور ایگزیبٹ کیا اور بیسیکلی کانسیپٹ یہ تھا کہ ہم اپنی زمین کو کیسے محفوظ کر سکتے ہیں, اپنے انوائرمنٹ کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں, گلوبل وارمنگ کو کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں اور کس طرح اپنی ضروریات کو ایسے پورا کریں کہ جس کے نتیجے میں ہماری زندگی آگے بڑھے, بجائے اس کے کہ ہم اس گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں بھی اور ان گیسز کے نتیجے میں بھی جو کہ ہماری ظاہر پوری زمین کو کھا رہی ہیں اور ہماری صحت کو خراب کر رہی ہیں, تو ہم اتنے اس سے پریشان ہوتے ہیں تو اس کو ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں. تو بچوں نے بہت اچھے پروجیکٹس بنائے تھے. اس میں واٹر کنزمپشن کیسے ٹھیک ہونی چاہیے, کیسے ہم اپنی اویلیبل ریسورسز کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں, کیسے ہم ریسائکل کر سکتے ہیں اپنی چیزوں کو اور کون کون سی چیزیں ہم استعمال کر کے بہت ساری انڈسٹریل جو ایمیشن ہے گیسز کی اس سے اوائڈ کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ تو ان کی اپنی کوشش ہے اور اس سے اویئرنیس بھی پیدا ہوتی ہے اور نہ صرف بچوں میں پیدا ہوتی ہے بلکہ بچوں کے ماں باپ میں بھی پیدا ہوتی ہے, ان کے فیملیز میں بھی پیدا ہوتی ہے. تو میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. لیکن یہ ایشو بہت بڑا ہے, انٹرنیشنل ایشو ہے, گلوبل ایشو ہے اور اس ایشو کو ایڈریس کرنا ہوگا. وہ سارے ممالک کہ جو سب مل کر پوری زمین کو آلودگی سے بھر رہے ہیں وہی انسانیت کے سب سے بڑے چیمپئن ہوتے ہیں. تو ان کو اپنی اداؤں پہ غور کرنا ہوگا اور دنیا کو ان آلودگیوں سے بچانے کے لیے انہیں خود اپنی خواہشات کو کم کرنا ہوگا, ورنہ دنیا اسی طرح سے تباہ ہوتی رہے گی اور یہ لوگ جو ہے وہ ہماری اس پوری دنیا کو ایک سمجھ لیں چراگاہ سمجھ کر چلتے رہیں گے. تو سب سے زیادہ ذمہ داری ویسٹرن کنٹریز پر عائد ہوتی ہے, اسپیشلی امریکہ پر اور یورپی ممالک پر, اور اب چائنا بھی اس دوڑ میں موجود ہے. تو ان کو دیکھنا ہوگا کہ گلوبل وارمنگ سے کیسے انسانیت کو بچاتے ہیں. جی ہمارے ساتھ حافظ نعیم الرحمان موجود ہے. آگے بڑھتے ہیں. انٹرمیڈیٹ حصہ دوم کامرس ریگولر گروپ کے سالانہ امتحانات برائے 2022 کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے. اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندہ سید زبیر راشد سے. جی زبیر. جی بالکل. اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کی جانب سے سال 2022 کے کامرس ریگولر گروپ کے نتائج کا اعلان جو ہے کر دیا گیا ہے اور اس وقت میرے ساتھ جو ہیں پوزیشن ہولڈرز جو طلبہ ہیں وہ اس وقت میرے ساتھ براہ راست موجود ہیں. لیکن سب سے پہلے آپ کی ملاقات کرائیں گے جو کہ جنہوں نے پہلی پوزیشن جو ہے حاصل کی ہے, پوزیشن ہولڈر ہیں, ان سے جانے کی کوشش کریں گے. آپ کو سب سے پہلے تو بہت بہت مبارکباد. یہ بتائیے کیا تاثرات ہیں اور آگے کیا کرنے جا رہی ہیں؟ الحمدللہ بہت خوش ہوں, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. انشاءاللہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کر رہی ہوں میں, تو ایڈمیشن میرا ہو گیا اور آئی ایم پریپیئرنگ فار دی ایگزامس. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں, ایک آپ اپنا نام بھی آپ واضح کر دیں اور دوسرا کون سے انسٹیٹیوٹ آئی بی اے میں لینے جا رہی ہیں یا اس کے علاوہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے حوالے سے ہی آگے اس کو پروسیڈ کریں گی؟ جی میرا نام لائبہ علی ہے اور میں ARTT انسٹیٹیوٹ آف اکاؤنٹنسی سے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کا پہلا ماڈیول کی تیاری کر رہی ہوں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور بھی دیگر طلبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی جان لیتے ہیں. آپ بتائیے گا کیا کرنے جا رہی ہیں اور کتنی خوش ہیں اور کون سی پوزیشن حاصل کی ہے؟ میں نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے اور میرا نام طوبہ عمیر ہے. اس وقت میں IBA کے اندر BBA کر رہی ہوں اور مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ پوزیشن حاصل کر کے اتنی انکریجمنٹ ملی, ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے. بہت اچھا لگا. آپ نے جو ہے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے, کیا کہنا چاہیں گی اور ہمارے سسٹم کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ کوئی دشواریاں آئیں کامرس گروپ میں؟ دشواریاں تو ایسے سچ نہیں تھیں, لیکن بس یہ ہے کہ سسٹم میں بکس کو تھوڑا ایڈوانس ہونا چاہیے اور A لیولز O لیولز کیمبرج سسٹم ہے اس سے تھوڑا اگر آپ کمپیٹیبل ہونے کی کوشش کریں تو صحیح ہے. اچھا ایک رجحان تھا, پہلے ہم دیکھتے تھے کہ کامرس گروپ میں زیادہ تر جو ہیں میل اسٹوڈنٹس جو ہیں ایڈمیشن لیتے تھے, لیکن آپ لوگوں نے تو ایک تاریخ رقم کر دی کہ تینوں پوزیشن جو ہیں. بہت شکریہ زبیر, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. آپ کو بتائیں کرسمس کے موقع پر عیسائی برادری میں تحفے دینے کا رواج عام ہے. اسی مناسبت سے الائنس فرانسس چرچ میں خصوصی بازار لگایا گیا ہے. مزید بتا رہی ہیں اقصا.
جی بالکل، جیسا کہ کرسمس جو ہے وہ عنقریب آنے ہی والا ہے تو اس کی مناسبت سے جو ہے تیاریاں اور جو ہے کام بھی شروع ہو چکا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت ایک لیڈی موجود ہیں جو اون سے کریشیا بناتی ہیں اور کرسمس کے حوالے سے انہوں نے کافی ساری جو چیزیں ہیں آئٹم یہاں پہ بنا کے اپنے اسٹال پر رکھے ہوئے ہیں۔ ان سے جانیں گے کہ ان کو اس میں کتنی محنت اور کتنا وقت لگتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ نے اپنے اسٹال پر کھلونے اور بچوں کی ٹوپیاں اون سے بنا کے رکھی ہوئی ہیں، آپ کو اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور کتنے عرصے سے آپ یہ کام کر رہی ہیں؟ جی السلام علیکم، میں نے دراصل یہ کام نا 1 سال پہلے شروع کیا تھا کووڈ والے ٹائم پہ، جب گھر میں کچھ کرنے کو تھا نہیں تو میں نے یہ دیکھا کہ یہ آرٹ فارم ہے جو لوگ نہیں کرتے زیادہ، یہ ہمارے نانی دادی کے زمانے کی چیز ہے جو اب نہیں ملتی آپ کو اتنی زیادہ۔ اب اگر آپ دیکھیں تو یہ میں نے کرنا شروع کی، خود میں نے یوٹیوب سے اکیلے سیکھا، پھر میں نے ٹوائز بنائے بچوں کے، کیونکہ اونی کپڑے آپ پہن نہیں سکتے ہو کراچی کے موسم کے حساب سے، یہاں پہ سردی اتنی نہیں پڑتی ہے اور یہ کپڑے ہوتے گرم ہیں۔ پھر میں نے کہا اس کو ہم کیوں نہ کھلونوں میں تبدیل کر دیں، پھر ہم نے الگ الگ طرح کے کھلونے بنائے اور لوگوں کو جو پسند آتے ہیں وہ ڈیزائنز بھی مجھے دکھاتے ہیں اپنے، تو ہم بناتے ہیں۔ جیسے اس طرح کا ایک ڈیزائن، یہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ مجھے بنا کے دینا تو میں نے ان کو بنا کے دیا تھا۔ بالکل، آپ نے سنا کہ ان کا کہنا ہے کہ کرسمس کے حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ بھی جو ہے ڈسکاؤنٹ نہیں بلکہ تحائف کے طور پہ انہوں نے جو ہے یہاں پہ اپنے اسٹور پہ چیزیں لگائی ہوئی ہیں جس پہ لوگ آ رہے ہیں خریدار۔